द हाउस बिल्डर, घर बनाने वाला मेमार। This is a story of a mason who worked from a building contractor. The mason always strove to do his work to perfection. ये कहानी एक घर बनाने वाले मिस्त्री यानी कि मेमार की है, जो घर बनाने के ठेकेदार के लिए काम करता था। अपने काम में पुख्तगी आने की वजह से वो मेमार हमेशा बहुत मेहनत करता था। As soon as a house had been designed by the architect and detail finalized by the engineer, the contractor would send for the mason and leave the responsibility of building the house to him. The mason would then, without wasting any time, start his work. He would take great interest in his work of building and do it with full dedication. He made sure that he used the best construction material of high quality. The measurement of the walls, drawers, arcades, etc. were performed, and he gave an excellent and appealing finish to whatever he built. The owner of the new houses built would be more than satisfied with the construction. जैसे ही उसे घर बनाने का नक्शा मिलता और इंजीनियर से हिदायत मिलती, ठेकेदार उसे मकान बनाने की जिम्मेदारी दे देता। मेमार बगैर वक्त ज़ाय किए अपना काम शुरू कर देता। वो दिलचस्पी और जज्बे के साथ अपने काम को अंजाम देता। वो अपने काम में तामीर के लिए बेहतरीन और आला दर्जे का सामान इस्तेमाल करता। दीवारों का नाप, दरवाज़े, मेहराब वग़ैरह मुकम्मल बिल्कुल नक्शे की तरह बनाता। वो जो भी काम करता वो शानदार और दिलकश होता। नए मकान को ख़रीदने वाले इमारत को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते। Because of the zeal, diligence, loyalty and presence that he displayed in his work, the mason was in great demand and fetched good business to his contractor. Subsequently, the contractor recompensed the mason handsomely with a very good salary. He could meet the needs of his family satisfactorily without any स्कैसिटी। इस तरह दिन रात मेहनत, अपने काम के ताल्लुक़ से जज्बा, जोश, बेइंतहा काम की सफाई, ईमानदारी और लगातार मेहनत की वजह से उसकी बहुत मांग थी और उसकी वजह से उस ठेकेदार बहुत पैसा कमाता था। वो ठेकेदार मिस्त्री को अच्छी खासी तनख्वाह देता था, जिससे उस मिस्त्री की तमाम ज़रूरियात आसानी से पूरी होती थी। The mason thus continued working with great devotion for many years till he became a grandfather. Then he decided that it was time to retire and spend time playing with his grandchildren. Being a perfect-minded person, he informed his contractor of his decision to retire from house building. The contractor was very disheartened to lose such as excellent workman and urged the mason to continue his job, but to no avail. The mason had made up his mind and refused to carry on. आखिरकार उस ठेकेदार ने उस मिस्त्री को एक आखिरी मर्तबा एक घर बनाने की पेशकश की। मिस्त्री न चाहते हुए आखिरी मर्तबा घर बनाने के लिए राज़ी हो गया। उस घर की तामीर शुरू हो गई। उस घर को बड़े ही खूबसूरत अंदाज में डिज़ाइन तैयार किया गया और उसके लिए जगह भी ख़ास तौर पर मुंतखब की गई थी। मिस्त्री ने बग़ैर दिलचस्पी के और बग़ैर ज़िम्मेदारी के और बग़ैर जज्बे के आपस मकान को बनाना शुरू किया। अब उस मकान के लिए इस्तेमाल होने वाला सामान पर भी तवज्जो नहीं दी। वो किसी तरह भी काम मुकम्मल करने के लिए बाद सबकदोश होना चाहता था। Finally, the contractor convinced the mason to build on one last house on a beautiful and convenient site. As a special favor, the mason agreed to do so with great
reluctance to not to happily either. मिस्त्री ने बगैर दिलचस्पी के और बगैर जिम्मेदारी के और बगैर जज्बे के वो मकान को बनाना शुरू किया. The construction it started. It was a most beautiful design house to be built as a sought after location. However, the merchant could not put his mind and heart in his work. He did his work very roughly and carelessly, without interest or dedication. Even the building material used was of low quality, but he did not care. He simply wanted to complete the job in haste and finally retire. उस घर को बड़े खूबसूरत अंदाज में डिज़ाइन तैयार किया गया था और उसके लिए जगह भी मुख्तसर मुंतखब की गई थी, मगर मिस्त्री ने बगैर दिलचस्पी के और बगैर ज़िम्मेदारी के वो काम किया और अब उसे मकान में इस्तेमाल जो हाई क्वालिटी का भी सामान इस्तेमाल नहीं किया. वो किसी भी तरह काम को मुकम्मल करने के बाद सबकदोश होना चाहता था, इसलिए उसने बगैर दिलचस्पी के वो काम किया. The house was ready earlier than expected. Very roughly made structure, weak walls, poor finish, and did not look as good at all at design. The merchant did not care. He informed the contractor that the house was ready and he was waiting to hand over its keys to him. मकान उम्मीद से पहले ही बनकर तैयार हो गया, लेकिन उसकी तामीर सही ढंग से नहीं हुई थी. कमज़ोर दीवारें और उस काम में सफाई नहीं होने की वजह से वो इमारत अपने डिज़ाइन की तरह नहीं बन पाई. लेकिन मिस्त्री को अब इस बात की फ़िक्र नहीं थी. काम मुकम्मल होते ही उसने ठेकेदार को इत्तला दी और उसने उसे बने हुए नए घर की चाबियाँ वो उसके सुपुर्द करना चाहता था. The contractor arrived at the site. He had a file of legal documents in his hand. The merchant handed over the new house's key to him, but the contractor did not step forward to enter the house to see it. Instead, with a broad smile, he handed over the file along with the house keys to the merchant and said, beaming happy tone, These are the ownership documents of this new house in your name. The house is yours. I had planned it as a gift for you. ठेकेदार उस जगह पर आया. उसके हाथ में कुछ कानून के कागजात थे. मिस्त्री ने घर की चाबियां उसके सुपुर्द की, लेकिन उस घर में दाखिल होने की बजाय वो मुस्कुराने लगा और वो कानूनी कागजात और चाबियां उसने मिस्त्री के सुपुर्द की और खुश अंदाज में कहा, ये कागजात तुम्हारे इस नए घर के हैं. ये घर तुम्हारा है. ये घर मैंने तुम्हें तोहफे में देने के लिए बनाया था. बच्चों, इस सबक से द हाउस बिल्डर घर बनाने वाले मेमार से हमें ये सबक मिलता है कि काम कोई भी हो उसे ज़िम्मेदारी से करना चाहिए. काम एक ज़िम्मेदारी है, ना कि सज़ा. अगर मिस्त्री एक काम को ज़िम्मेदारी से करता तो उसके लिए फ़ायदेमंद होता, लेकिन उसने ये काम को एक सज़ा के तौर पर किया कि अब मैं रिटायर होना चाहता और मुझे काम दिया गया, इसलिए उसने काम को सही नहीं किया और यही उसे तोहफे में मिला. अब देखिए यहाँ पर उसके ऊपर क्या बीती होंगी. तो इसीलिए हमें हर काम एक ज़िम्मेदारी से, लगन से करना चाहिए. वर्क इज़ रिगार्ड नॉट अ पनिशमेंट. काम एक ज़िम्मेदारी है, ना कि सज़ा. दिस इज़ द लेसन. द हाउस बिल्डर घर बनाने वाला मेमार यानी घर बनाने वाला मिस्त्री.